تلنگانہ کرکٹ ایسوسی ایشن نے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ اور CID سے VRS قائدین KTR کے کویتا اور دیگر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ تلنگانہ کرکٹ ایسوسی ایشن نے CID اور انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے پاس باضابطہ شکایت درج کروائی ہے، جس میں KTR کے کویتا اور حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے اہم ارکان سمیت کئی دیگر شخصیات کے خلاف کارروائی کی مانگ کی گئی ہے۔ شکایت میں ان پر بدعنوانی اور مالی بد انتظامی کے معاملات میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ CID اور ED کو بھیجے گئے خط میں جگن موہن راؤ کے کویتا، KTR اور HCA کے سابق ڈائریکٹر V پرتاپ کی سرگرمیوں کی گہری جانچ کی بھی اپیل کی گئی ہے۔ اتنا ہی نہیں، TCA نے 2 فورنسک آڈٹ رپورٹ پیش کی ہیں۔ ایک رپورٹ جسٹس انل دوے کمیٹی کی ہے، جو کہ سال 2018 میں جاری کی گئی تھی، اور دوسری رپورٹ جسٹس L ناگیشور راؤ کمیٹی کی ہے، جو کہ سال 2023 میں سامنے آئی تھی۔ TCA کی شکایت میں حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے اندر متعدد مسائل کو بھی اجاگر کیا گیا ہے، جس میں کرکٹ کی ترقی کے لیے ہندوستانی کرکٹ کنٹرول بورڈ کی جانب سے مختص فنڈز کی بد انتظامی وغیرہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ وقار ضلع کے تانڈور میں ٹاسک فورس پولیس نے ایک اسکول کے قریب سے اتر پردیش کے ایک باشندے کو حراست میں لے کر منشیات چاکلیٹ ضبط کر لی۔ ذرائع نے بتایا کہ ضلع ٹاسک فورس نے تانڈور شہر کے سائی نگر کے نمبر 1 اسکول کے قریب سے ایک شخص کو حراست میں لیا، جس کی شناخت اتر پردیش کے رہنے والے ونیش نائک کے طور پر کی گئی۔ حکام نے بتایا کہ وہ اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے کرناٹک کے سیڈم سے تانڈور پہنچا تھا۔ پولیس کو شبہ ہے کہ وہ منشیات چاکلیٹ کی غیر قانونی منتقلی میں ملوث ہو سکتا ہے۔ ملزم فی الحال پولیس کی حراست میں ہے، جہاں اسے تفتیش کی جا رہی ہے۔ اسکول کے قریب سے ایک شخص کے منشیات چاکلیٹ سمیت پکڑے جانے کے واقعے نے مقامی لوگوں اور والدین میں تشویش پیدا کی ہے۔ حکام نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ چوکس رہیں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع پولیس کو دیں۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے صنفی مساوات کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوامی حکومت کا ہدف صنفی عدم مساوات کو ختم کرنا ہے۔ خواتین کمیشن کے زیر اہتمام حیدرآباد کے نظام کالج میں صنفی مساوات کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ عوامی حکومت کا ہدف خواتین کو مالی طور پر مستحکم کرنا اور صنفی عدم مساوات کو ختم کرنا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے کہا کہ جب آئین کا تحفظ ہوگا تو صنفی مساوات اسی صورت میں ممکن ہو سکیں گے۔ بابا صاحب امبیڈکر کا ذکر کرتے ہوئے بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے لکھے ہوئے آئین کی وجہ سے ہی ملک میں خواتین کو عزت نفس، صنفی مساوات اور دیگر حقوق حاصل ہوئے ہیں۔ AIMIM یاقوت پورہ MLA جعفر حسین معراج نے محکمہ بلدی برقی اور آب رسانی کے عہدیداروں کے ہمراہ تالاب چنچلم ڈویژن کا تفصیلی دورہ کیا۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے تالاب چنچلم ڈویژن میں زیر التواء کاموں کو شروع کروانے اور بنیادی مسائل کی نشاندہی کرنے کے لیے جمعرات کو AIMIM یاقوت پورہ MLA جعفر حسین معراج نے تالاب چنچلم ڈویژن کا تفصیلی دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ بلدی برقی اور آب رسانی کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ MLA نے کیچ پٹ کی مرمت اور سیوریج کے مسائل کی نشاندہی کی۔ عہدیداروں سے کہا کہ وہ ان مسائل کو جلد از جلد حل کریں۔ جعفر حسین معراج نے شاہجہاں ہوٹل سے سمت ہوٹل تک اور ریلوے کراسنگ تک کا دورہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹھیکیدار کے ساتھ مسائل کی وجہ سے ریلوے انڈر پاس کا کام زیر التواء تھا۔ پرانے ٹینڈرز کو منسوخ کرنے کی بھی ہدایت دی گئی اور یہ کام نئے ٹھیکیدار کو سونپا گیا۔ MLA کے مطابق آنے والے پیر یا منگل تک ریلوے انڈر پاس برج کا کام بھی شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بروقت ترقیاتی اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین پرعزم ہے۔ اس دورے کے موقع پر تالاب چنچلم ڈویژن کی کارپوریٹر ڈاکٹر سمینہ سلطانہ، مجلس کے ابتدائی صدور معتمدین کے علاوہ سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی خاص انسٹرکشن پہ تالاب چنچلم کا ایک دورہ منعقد کیا گیا، جس میں GHMC، واٹر ورکس، الیکٹرسٹی اور دیگر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ میں
डॉक्टर सबीना मैडम जो यहाँ की मुकामी कारपोरेटर है, उसके साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर के अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले भी सब आज के इस दौरे में मौजूद थे। हमने ये दौरा कर कर ऑफिसरों को ये बताया कि भाई जो जो काम शुरू होने का उसको स्टार्ट करना है, जो काम के लिए आइंदा प्रपोजल डाले उसको सैंक्शन देना है। उसके अलावा कैच पिट रिपेयरिंग है, वाटर वर्क्स के अंदर हमारे को जो सीवरेज का प्रॉब्लम आता है उसको दूर करने के लिए। और ये दौरा शाहजहां फंक्शन हॉल से स्टार्ट हुआ होके सीधा समद होटल से होते हुए रेलवे क्रॉसिंग तक। जो रेलवे का अंडरपास का काम जो शुरू होने का था, काफ़ी दिन से उस काम के लिए जो पुराना कॉन्ट्रैक्टर था वो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि काम रेलवे वाले कराना था। उसका टेंडर कैंसिल करके नया टेंडर कराया। वो नया कॉन्ट्रैक्टर इंशाल्लाह पीर या मंगल से आरओबी का काम शुरू करेगा। आरयूबी का जो काम है वो इंशाल्लाह ताला पीर मंगल से चालू हो जाएगा। आज के इस दौरे के अंदर जितने लोग मौजूद है, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके अलावा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह ताला तालाब चिंचलम के अंदर जो काम हो रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा के कामों के लिए भी तेज़ी से लेकर आया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग हमारे साथ में मौजूद है, इंशाल्लाह ताला उनको साथ लेते हुए हम यहाँ की तरक्की को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नौजवान लड़कियों की बरहना वीडियोस रिकॉर्ड की गई। खवातीन ने शर्मनाक हरकत करने वाले 4 अफराद को पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। जराये ने बताया कि विशाखापट्टनम के द्वारका पुलिस स्टेशन हदूद में लड़कों का हॉस्टल और लॉज एक दूसरे से मुत्तसिल हैं। हॉस्टल में रहने वाले नौजवान लड़कों ने लॉज में रुकने वाली खवातीन की बरहना वीडियोस रिकॉर्ड की। इस वाक़े का इल्म होने पर खवातीन ने मुबैना तौर पर उनकी वीडियोस बनाने वाले नौजवानों के साथ मारपीट की और फिर उन्हें द्वारका पुलिस के हवाले कर दिया। द्वारका पुलिस ने नौजवानों के मोबाइल फ़ोन की जांच की है और लड़कियों की शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर में टमाटर ले जाने वाली एक लॉरी उलट जाने की वजह से ड्राइवर और क्लीनर मामूली जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि शमशाबाद से गुड्डी मलकापुर मार्केट तक टमाटर ले जाने वाली एक लॉरी तेज रफ्तारी की वजह से बेकाबू हो गई और राजेंद्र नगर में पीवी एक्सप्रेस हाईवे सुतून नंबर 216 के करीब उलट गई, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त में खलल पड़ा। ड्राइवर और क्लीनर मामूली तौर पर जख्मी हो गए। लॉरी उलट जाने की वजह से टमाटर के डब्बे सड़क पर फैल गए। मुकामी लोगों ने फौरन हरकत में आते हुए उन टमाटर्स को इकट्ठा करने में मदद की। ट्रैफिक पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के अहदेदार भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने ट्रैफिक को बहाल किया। उल्टी हुई लॉरी को मुंतकिल करने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया। AIMIM कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने भोंगीर के सरकारी उर्दू मीडियम मदारिस के तलबा में तालीमी इमदाद तकसीम की। भोंगीर में सरकारी उर्दू मीडियम मदारिस के तलबा व तालिबात में तालीमी इमदाद की तकसीम का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और तलबा व तालिबात में तालीमी इमदाद की तकसीम अमल में लाई। परगी MLA डॉक्टर टी राम मोहन रेड्डी ने 20 करोड़ रुपये लागती बीटी रोड की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। जराये ने बताया कि परगी MLA व DCC के सदर डॉक्टर टी राम मोहन रेड्डी ने मुकामी कायदीन और अहदेदारों के साथ मिलकर 20 करोड़ रुपये लागती बीटी रोड की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। पदुर मंडल के चट्टमपल्ली से लाल पहाड़ तक नई बीटी रोड तामीर की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हर गांव में सड़कों की तामीर की जा रही है और दूर दराज के देहातों को मिलाने वाली लिंक सड़कों की तामीर को तरजीह दी जा रही है। MLA ने कहा कि रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत शहरों के साथ साथ गाँवों की तरक्की को भी तरजीह दे रही है। उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों की भी तफसीलात बताई। MLA ने बताया कि अप्पा जंक्शन से मनीगुड़ा तक
4 लेन वाली सड़क तामीर की जाएगी। उन्होंने इंकशाफ किया कि रियासत माली बहरान का शिकार होने के बावजूद हुकूमत इंतखाबी वादों पर अमल कर रही है। रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने सिंगूर डैम से 100 क्यूसिक पानी छोड़ा, किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। सिंगूर प्रोजेक्ट से आपाशी का पानी न छोड़ने की सूरत में किसानों को मुश्किलात का सामना था। किसानों की जानिब से धरना मुनज़्ज़म करने का इंतबाह दिया गया था और भारत राष्ट्रीय समिति ने किसानों के धरने की हिमायत का भी ऐलान किया था। हुकाम ने सिंगूर प्रोजेक्ट से आपाशी का पानी छोड़ने का इंतजाम किया, जिसके बाद जुमेरात को वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने सिंगूर प्रोजेक्ट से 100 क्यूसिक पानी छोड़ा। आपको बता दें कि बीआरएस के कायदीन की जानिब से जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए सिंगूर से पानी खारिज करने की दरख्वास्त की गई थी। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने सिंगूर की बाएं नहरों के जरिए आपाशी के लिए पानी छोड़ा। इससे 40,000 एकड़ अराजी सैराब होगी। बीआरएस कारकुनान इस इक़दाम को अपनी जीत समझते हैं। जो 100 क्यूसिक पानी खारिज किया गया है वो पानी पुलकल, चोटाकोर और अंदोल तक पहुंचेगा। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस हुकूमत के क़याम के तकरीबन 20 माह बाद सिंगूर प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया है। आज आपाशी के लिए पानी खारिज किए जाने के बाद किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने गोदावरी के पानी की तकसीम के मामले पर सनसनीखेज तबसरा किया। कहा ये वजीर आला या उनके आबा व अजदाद की जागीर नहीं है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वज़राए आला का एक इजलास दिल्ली में मुनक्किद हुआ, जहां पर दोनों ने दरियाए कृष्णा और गोदावरी के पानी की तकसीम के मामले पर बातचीत की और दरियाए कृष्णा पर टेलीमीटर की तनसीब से इत्तेफाक भी किया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने जुमेरात को सहाफ़ियों से बात करते हुए दरियाए कृष्णा और गोदावरी के पानी की तकसीम के मामले पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये वज़ीर आला या उनके आबा व अजदाद की जागीर नहीं है कि वो चंद्रबाबू नायडू के कहने पर कमेटी तश्कील दे दें और उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। केटीआर ने कहा कि गोदावरी और कृष्णा नदियों का एक बड़ा हिस्सा तेलंगाना में बहता है और उसी लिहाज से तेलंगाना को ज़्यादा पानी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत राष्ट्रीय समिति आंध्रा के लोगों और किसानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन्हें तेलंगाना की आवाम और किसानों के मफादात अहम हैं। साबिक वज़ीर ने आंध्रा के कायदीन पर भी नुक्ताचीनी की। कागजनगर के वार्ड नंबर 23 में नाले का पानी घरों में दाखिल हो गया, लोगों को मुश्किलात का सामना रहा। ज़राए ने बताया कि कागजनगर के वार्ड नंबर 23 में बड़े नाले को छोटे नाले में तब्दील कर दिया गया, जिसकी वजह से बारिश का पानी नाले से लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। लोगों को मुश्किलात का सामना है। वार्ड नंबर 23 के कंटेस्टेड काउंसलर मोहम्मद आबिद खादरी को जब इसका इल्म हुआ तो वो अपनी टीम के साथ लोगों की मदद के लिए पहुंच गए। उन्होंने म्यूनिसिपल कमिश्नर से भी राब्ता किया और इस मसले का हल तलाश करने की दरख्वास्त की। रियासत तेलंगाना के एक और गुरुकुल में फूड पॉइजनिंग का वाकया, 30 से ज़ायद तलबा बीमार पड़ गए। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ गुरुकुल्स में आए दिन समेत ग़िज़ा के इस्तेमाल से तलबा बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन इस सिलसिले में कोई मौसर इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। हाई कोर्ट की फटकार और हिदायत का भी कोई असर नज़र नहीं आता। बताया जाता है कि जगतियाल ज़िले के लक्ष्मीपुर गुरुकुल में समेत ग़िज़ा खाने से 30 से ज़ायद तलबा बीमार पड़ गए। उन्हें इलाज के लिए जगतियाल MCH मुंतकिल किया गया, जहां 6 तलबा की हालत तशवीशनाक बताई गई। याद रहे कि 3 दिन पहले नलगुंडा ज़िले में नाश्ते के बाद 35 तालिबात की तबीयत खराब हो गई थी। तेलंगाना के हनमकुंडा जिले के परकाला ज़रई बाजार में यूरिया और खाद हासिल करने के लिए कतारों में खड़े किसानों ने मुताल्लिक़ा अफसरान से वहां का दौरा करने और मसाइल को हल करने का मुतालबा किया है। खाद और यूरिया की सप्लाई में ताख़ीर से किसान परेशान हैं, उनमें गम व गुस्सा पाया जा रहा है। परकाला ज़रई बाजार में किसानों को लंबी लंबी कतारों में खड़ा देखा जा रहा है। खाद की फराहमी में ताख़ीर की वजह से वो बरहम देखे गए। किसानों ने
کہا کہ انہیں کھاد اور یوریا کے حصول کے لیے کئی دنوں تک انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ زرعی کام رکنے کی وجہ سے انہیں نقصان کا سامنا ہے۔ کسانوں نے پوچھا ہے کہ کیا ان کا کام فصل اگانا ہے یا پھر قطاروں میں کھڑے ہونا ہے۔ کسانوں کی ناراضگی کو بڑھتے دیکھ پولیس نے مداخلت کی اور عہدیداروں سے بات کرتے ہوئے کسانوں کو یقین دلایا کہ جلد ہی کھاد اور یوریا کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ کسان چاہتے ہیں کہ یوریا اور کھاد وقت پر مہیا کروایا جائے اور بلیک مارکیٹنگ پر قابو پایا جائے۔ انہوں نے متعلقہ افسران سے وہاں کا دورہ کرنے اور مسائل کو حل کرنے کی بھی مانگ کی ہے۔ 10 రోజులు అయితే తిరగబట్టి మేము మధ్యతరగతి మనుషులం, మాకు పిండి బత్తాలు లేక ఇబ్బంది అవుతుంది। మేము పంట కూడా విక్కోవాలా వేయకపోవాలా, ఓ బస్సులని లంజ బస్సులని పెట్టి ఆ లంజ బస్సుల కొరకు ఇప్పుడు మమ్మల్ని దోసపుచ్చుకుంటాము। ఇది తీయని లేకుండా లేదు, సప్పుడు కూకుంటాం ఇక। ఇప్పుడు ఇచ్చిల్లా మరి కూపన్? ఇప్పుడు ఎక్కడ ఇంకేడా ఇయ్యలేదు, మళ్ళీ తిరిగిపోవడం అవుతుంది। మొన్న పొద్దున్న పోయిన 4 రోజుల కింద తిరిగిపోయినాం, అప్పుడు లేదు ఇప్పుడు లేదు। ఇక వీళ్ళు చేయబట్టి ఇక జనాలు ఏం చేస్తారో సీరియల్ కానీ పెట్టి ఈడ చెప్పులు ఆడి పెట్టి ఆడబెట్టి ఈడబెట్టి ఇస్తామని పెట్టి ఇట్లా చేస్తారు। జనాలు ఏం చేస్తారో బస్సులు అని ఉచితం కానీ ఇదని అదని। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कागज नगर टाउन प्रेसिडेंट अब्दुल मुबीन ने बारिश से मुतासिरा सरसिल कॉलोनी का दौरा किया। तेलंगाना के आसिफाबाद कागज नगर इलाकों में 4 दिन के वक्फे के बाद फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता रात कागज नगर में मूसलाधार बारिश हुई। बताया जाता है कि मूसलाधार बारिश की वजह से सरसिल कॉलोनी में कई मकानात में पानी दाखिल हो गया। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कागज नगर टाउन प्रेसिडेंट अब्दुल मुबीन ने सरसिल कॉलोनी का दौरा किया। उन्होंने कागज नगर म्यूनसिपल कमिश्नर से दरख्वास्त की कि वो फौरी तौर पर सरसिल कॉलोनी का दौरा करें और लोगों को राहत पहुंचाए। जीएचएमसी के कमिश्नर आरबी कन्नन और म्यूनसिपल शहरी तरक्की के सेक्रेटरी डॉक्टर के इलमबर्ती ने मरकजी वजीर मनोहर लाल से स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड हासिल किया। ग्रेटर हैदराबाद को मुल्क भर के 4500 शहरों में से छठा सबसे साफ सुथरा शहर करार दिया गया है और स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। जीएचएमसी के कमिश्नर आरबी कन्नन और म्यूनसिपल शहरी तरक्की के सेक्रेटरी डॉक्टर के इलमबर्ती ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद प्रोग्राम में मरकजी वजीर मनोहर लाल के हाथों स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड हासिल किया। आपको बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2024 में ग्रेटर हैदराबाद 10 लाख और उससे ज़ायद की आबादी वाले फजले से पाक शहर के ज़ुमरे में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए छठा रैंक हासिल करने में कामयाब रहा है। जीएचएमसी को ODF में वाटर प्लस सर्टिफिकेट भी दिया गया है। याद रहे कि गुज़िश्ता साल ग्रेटर हैदराबाद ने 9वां मुकाम हासिल किया था। सैनिटेशन के एसी रघु प्रसाद, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट SC कोटेश्वर राव, EE श्रीनिवासा रेड्डी, ASP M ईशा श्री रेड्डी वो दीगर ने इस तकरीब में शिरकत की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,